Anyone who invests in real estate will lose money for the next 10 years. ये तो बहुत ज़्यादा hot take है. A bit too hot. No, I don't agree with that. People go into stupid investments, उसके लिए 10 years wait करने की ज़रूरत नहीं है. 1 साल में भी चले जाएगा पैसा. In India, finance isn't personal. It's a family WhatsApp group project. Your dad wants safety, your mom wants clarity, your brother wants returns, you want growth, your CA wants your soul. लगता है ट्वीट का जगह कम था. योर नेबरहुड अंकल वांट्स यू टू इन्वेस्ट इन LIC पॉलिसी, वो भी है. So all these things. A great way to make passive income is to take 1 crore from the bank at 8% and give it to your friend at 15%. You can make 2,000 rupees every day by doing nothing. So बैंक तो अपना पैसा ले लेगा आपसे. फ्रेंड का अगर बिजनेस डूब गया वो तो सॉरी बोल देगा, वो कहेगा मैं दे दूंगा, जिंदगी में कभी ना कभी दे दूंगा. Moral of the story also to have good friends in life. Absolutely. आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, आपको पैसा देंगे, आपसे मांगेंगे नहीं. No index fund was available 30 years ago in India. Over long time frames, active funds have beaten the daylights out of index. हम स्टॉक मार्केट में लड़ाई करने आए हैं क्या? हम ईगो पे क्यों ले लेते हैं हर बात को? मैं तो इंडेक्स वाला ही हूँ, मैं तो एक्टिव वाला ही हूँ. तलवारें निकाल लीजिए इंडेक्स और एक्टिव वालों ने अपने एक दूसरे के. क्यों? वाई? मैं तो कहता हूँ आप दोनों का एक्सपोजर रखिए. अगर आपके पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो भी है लेकिन 2 करोड़ की जमीन है तो उनको दिखता है 2 करोड़. आपके पास गाड़ी है 50 लाख की, वो फैंसी, वो दिखेगी. आपके 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो तो कल गिर सकता है. तो लोगों को अभी भी लगता है कि जमीन हो, गाड़ी हो, जो दिखती है वही बिकता है. तभी I think iPhone's a bigger flex than any SIP. 100%. Don't buy stocks, don't buy sectors, buy a well-diversified mutual fund. If you don't know which one, buy Nifty 500 index fund. You're not smart enough to beat the mutual fund manager. Not a bad thing to say. अच्छा. That around 60% large caps होता है, around 27% mid caps होता है और बाकी 12% small caps होता है. So that's how Nifty 500 is structured. You're not smart enough to beat the mutual fund manager. I think that's a 50-50 scenario. Oh. Because index fund जो होता है, over the long run, you will generally see that there are about 30% of the fund managers that have beaten the index. Different countries में different experience होता है. US is more like 20-80, India is more like 50-50. The Indian real estate market feels like a bubble. Even a 1 BHK in the city is out of reach for middle class. Black money has driven prices through the roof. See, I don't agree with the fact that it's a bubble. ये affordability का angle से देखे तो it's affordable for less population of the society. 3% to 4% of the economy ही घर खरीद सकता है. Naturally जो वो 3% में नहीं है उनको बबल जैसा दिखाई देगा, बट वैसा नहीं, वो बबल नहीं है. It is definitely becoming less affordable. वो तो एक है प्रॉब्लम, क्योंकि इंटेंसिव कॉस्ट बढ़ रहा है. कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता उधर. कौन आदमी लैंड कम में बेचेगा? आप बेचेंगे, अगर आपके पास लैंड नहीं बेचेंगे तो आप लैंड कम में नहीं बेचेंगे. स्टील सीमेंट का प्राइसेस कम नहीं होता, घर का प्राइस कम कैसा होगा? राइट. ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है रियल एस्टेट में, जिससे वो थोड़ा कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है. बट डेफिनेटली पोस्ट डिमोनेटाइजेशन ऑल ऑफ दिस, द ब्लैक मनी पार्टिसिपेशन इन मोस्ट affordable and premium segment housing has come down. Many people are buying products in that segment are taking bank loan. बैंक लोन ले रहे तो आप कैश के जरिए पेमेंट करें तो आपको उतना बैंक लोन नहीं मिलेगा. To maximize the bank loan, people pay a lot in almost the entire proceeds in white. If you have 1 CR in investments, people say still figuring life out, but take a 80 lakh home loan and suddenly it's perfect marriage material. Society's logic, debt is better than discipline. Flexi EMI, not the FD. ये तो बढ़िया ट्वीट है. कुलदीप जी, आज भी हमारे देश में लोगों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती है. अगर आपके पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो भी है लेकिन 2 करोड़ की जमीन है तो उनको दिखता है 2 करोड़. आपके पास गाड़ी है 50 लाख की, वो फैंसी, वो दिखेगी. आपके 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो तो कल गिर सकता है. तो लोगों को अभी भी लगता है कि जमीन हो, गाड़ी हो, जो दिखती है वही बिकता है. तभी I think iPhone's a bigger flex than any SIP. 100%. An engineer is ready to leave his 1 CR CTC job if he has a passive income of 24 lakhs. Once the employer TDS goes away, it's extremely hard for government to loot people. Even if they manage to earn 40 lakhs from his savings, it can be easily distributed among family members to make his tax zero. ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपने गिफ्ट कर दिया, खर्चा उनसे करवा लिया बच्चों को, ऐसा नहीं होता है. क्लबिंग का भी रूल्स हैं इनकम टैक्स में, प्रोविजनिंग के, देख लेने चाहिए. CA से पूछ लो या पता कर लो. इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर किसी 1 CR सैलरी है तो हाथ में तो उसका मुश्किल से 4 लाख रुपये महीना आता होगा. राइट. सो खर्चा वही मैंने आपको बताया हमेशा नंबर 1-1.5 लाख 2 लाख
वंस यू हैव अर्न दोज करोड्स फॉर फ्यू ईयर्स, आपने घर देख लिया, बच्चों की एजुकेशन देख ली, देन 24 लाख इज गुड इनफ फ्रॉम पैसिव इनकम. 2 लाख अ मंथ इज गुड इनफ. अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप हस्बैंड वाइफ बच्चों में, पेरेंट्स में, वो आपकी मर्जी है. गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लेती है इसीलिए क्योंकि लोग टैक्स चुराते हैं ऐसे. सब लोग तरीके से टैक्स दे दें तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा. वाई डू दे नीड टू चार्ज सो मच? हम खुद तो चोरी करते हैं, फिर गवर्नमेंट को कहते हैं आप टैक्स ज़्यादा ले रहे हो. हाँ वो तो टैक्स बेस है कितना इस देश में? ऐसे तो नहीं लोग कमा नहीं रहे हैं, टैक्स देते नहीं है. It's simple. If you do not have the money to go abroad for studies, never take loans. आई वुड एग्री. अगर आपके पास पैसा नहीं है, लोन नहीं लेना चाहिए. इफ यू कैन नॉट कवर अप समहाउ और द अदर, इफ यू डोंट हैव लैंड, तो इस कारण लाइक बिल्ड अप करियर्स, लोन नहीं पे कर पाते, तो आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए. यू कैन नॉट इजीली डिफॉल्ट अ लोन इन इंडिया. बिल्ड करियर इन इंडिया अगर ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन Yeah. अगर generational wealth नहीं है तो take a chill pill. है. टेक्निकली यस. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मार्केट वर्ल्ड वाइड इज अनस्टेबल. कोई पता नहीं फायदा क्या नहीं होता है ना है. कि 2 करोड़ का लोन ले लिया and then you're not able to get a job also. Exact- And घर पे assets भी नहीं है to liquidate ताकि वो लोन भी repay हो पाए. एग्जैक्टली. वर्ल्ड वाइड मार्केट ब्रेक हो गया बिकॉज यूएस के लोग कनाडा में 30% ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं. कैन यू बिलीव इट? कनाडा इज कंपेटिटिव फॉर इंडियंस. अब इंडियंस को यूएस स्टूडेंट्स के साथ compete करना पड़ेगा टू गो टू कनाडा. The longer you own index funds, the higher the probability they outperform active funds. A few good index funds is all you need to be successful. ओके, अग्री 50%. इंडेक्स फंड्स डेफिनेटली बहुत अमेजिंग टूल हैं. इंडेक्स फंड के एडवांटेजेस जो है ना, जो लॉन्ग टर्म टैक्स डेफरमेंट है, वो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है. और दूसरी बात, मैं डिसएग्री क्यों करता हूँ, मैं कोई आपको इंडिया स्टोरी नहीं देना चाहता कि इंडिया में बहुत एक्टिव फंड्स हैं जो इंडेक्स फंड को बीट कर सकते हैं. बट येस, इंडिया में कुछ सिलेक्टिव फंड्स ज़रूर हैं जिनके फंड मैनेजर्स बहुत सॉलिड नॉलेज के साथ, रिसर्च के साथ, बिना पैनिक के साथ, बिना फालतू के ट्रेंड्स को चेस करने के साथ आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं. वो फंड्स ढूंढिए और वो फंड्स आप ढूंढ सकते हैं. आसानी से, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और वो फंड्स आप ढूंढ सकते हैं. और वो फंड्स डेफिनेटली इंडेक्स फंड के साथ कॉम्बिनेशन में आपके पोर्टफोलियो को एक तरह से स्टीरॉइड्स पे डाल सकते हैं. Having an assured 1 lakh per month passive income is still very hard. Don't count SWP, it can drain very fast and wipe out the principal. Almost 2 CR is required to make FD and get 1 lakh per month. Rents can give 40 to 50k assured but demand 1.5 CR to 2 CR upfront investment. No one starts with passive income of 1 lakh. You start with 100 rupees, 1000 rupees, 10,000 rupees. You go in steps. आपको सीढ़ी चढ़नी है, 1 2 3 चक्कर चढ़ोगे ना, सीधे टॉप फ्लोर थोड़ी पहुंच जाओगे. एब्सोल्युटली राइट. एफडी में 2 करोड़ पे 1 लाख आएगा. अभी और कम आएगा, एफडी रेट्स कम हो रहे हैं. इट विल गो डाउन फर्दर. तो उसमें कोई दो राय नहीं है. एंड वंस यू आर एमिंग फॉर 1 लाख, यू नीड अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. कुछ इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रेट 6-7% होता है, कुछ में 10-11% होता है, कुछ में 20% 25% रिटर्न आएगा, बट इन्वेस्टमेंट डालते ही नहीं आएगा. 5 साल 6 साल मैंने सीड्स का एग्जाम्पल लिया था. यू वेट फॉर फ्यू ईयर्स, लेट द सीड्स मैच्योर इनटू प्लांट्स, तब आएगा. Anyone who invests in real estate will lose money for the next 10 years. ये तो बहुत ज़्यादा hot take है. A bit too hot. No, I don't agree with that again. If people go into stupid investments, उसके लिए 10 years wait करने की ज़रूरत नहीं है. 1 साल में भी चले जाएगा पैसा. The holy grail thing doesn't exist, boss. ऐसा नहीं कि don't invest in this thing and you'll be successful in life, or invest in this thing you'll be successful. ऐसा कुछ भी holy नहीं होता है. Basis on the change in markets, assets to assets, returns keep changing. Common sense वो होता है जब we always spot the trend and like see what is going to happen rather than keep a holy grail statement. नहीं होता है वैसा. MF Investing 101. Your kid will say, when my parents invested 1 lakh rupees 30 years ago, what do you want your kid to say next? Index versus direct versus regular. फिर किसी ने इस पे retweet किया कि MF Investing 202. No index fund was available 30 years ago in India. Over long time frames, active funds have beaten the daylights out of index. So theory versus practical wise, better to teach the kid the practical. Exactly. हम स्टॉक मार्केट में लड़ाई करने आए हैं क्या? हम ईगो पे क्यों ले लेते हैं हर बात को? मैं तो इंडेक्स वाला ही हूँ, मैं तो एक्टिव वाला ही हूँ. तलवारें निकाल लीजिए इंडेक्स और एक्टिव वालों ने अपने एक दूसरे अगेंस्ट. क्यों? वाई? मैं तो कहता हूँ आप दोनों का एक्सपोजर रखिए अपने पोर्टफोलियो में. स्टेबिलिटी इंडेक्स फंड आपको देगा, लॉन्ग टर्म टैक्स डेफरमेंट इंडेक्स फंड आपको देगा, मार्केट इक्विवेलेंट रिटर्न इंडेक्स फंड आपको देगा. फिर थोड़ा सा एक्सपोजर आपकी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली एक्टिव फंड्स आपको दे सकते हैं. यस, कुछ फंड जिनसे दूर रहना है. अगेन क्या नहीं करना है, मैं थीमेटिक से, सेक्टोरल से बिल्कुल दूर रहता हूँ. अगेन मुझे जो ऐसा लगता है भाई बहुत हाई पी, बहुत हाई ग्रोथ चेजिंग मैनेजर्स हैं, मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ. तो आप प्लीज़ इस पर लड़ाई मत करिए. ट्विटर तो प्लेस ही ऐसा है ना कि भाई मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, आप बताओ किसका क्या ओपिनियन है. हाँ, और करेक्ट. लड़ने ही आते लोग. यस, लड़ने आ जाते हैं सब लोग. तो
मैं तो बोलूँगा स्टे अवे, दोनों के मजे लें, दोनों से रिटर्न कमाएं, अल्टीमेट गोल है वेल्थ क्रिएट करना, और आप दोनों से वो कर सकते हैं. If you're low on budget and determined to study overseas, you can enroll for a master's degree program in China, Ukraine, Lithuania, Latvia, and you can work your way to your dream country. Start from somewhere. Do you think this thought process कि कहीं ना कहीं study abroad करना ही करना है, do you think it's worth it? आई थिंक वर्थ इट. चाइना में सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेड्स है, इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है. तो लाइक कंपटीशन ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, पर किसी और कंट्री में जाओ जहाँ पे स्टेम ग्रेड्स कम है, यू विल फील लाइक कि लाइक आई एम सो स्पेशल. एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कंट्रीज, कोई भी कंट्री में जाके देखो, इट कैन वर्क आउट. आपको लग रहा है कि मैं तो एवरेज में एवं ही हूँ, यू विल बी लाइक कि आई एम द किंग. A great way to make passive income is to take 1 crore from the bank at 8% and give it to your friend at 15%. You make 2000 rupees every day by doing nothing. फ्रेंड लेके भाग गया तो ऑलवेज अ रिस्क एसोसिएटेड. बैंक को जो पैसा दे रहे हैं, बैंक ने तो आपसे कुछ ना कुछ लियन लिया होगा. अगर 8% पे है, देयर हैज टू बी अ लियन. सो बैंक तो अपना पैसा ले लेगा आपसे. फ्रेंड का अगर बिजनेस डूब गया, वो तो सॉरी बोल देगा, कहेगा मैं दे दूंगा जिंदगी में, कभी ना कभी दे दूंगा. एंड इवन इफ यू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस और हसल्स, दे कैन नॉट बी यूजिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर वेल्थ. अगर 1 करोड़ का वेल्थ है तो 5-10 लाख कैद कर लिया तो कर लिया कि ठीक है, इतना रिस्क मैंने ले लिया. आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है? एंड यू कैन टेक दिस रिस्क एट अ 50-60 एज, जबकि आप दोबारा कमाने की ऑप्शन नहीं है. Okay, so moral of the story also to have good friends in life. एब्सोल्युटली. आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए, आपको पैसा देंगे, आपसे मांगेंगे नहीं. Home loan EMI plus rent has to be the worst cocktail for a salaried person. I totally agree. It's like you're not even getting the product and you're paying both of them, right? So imagine the dip in quality of life you're going to have because lack of financial constraint. It will make a rich person feel poor. So I think definitely going forward, the business models are also going to change where the entire, home loan का interest जो बढ़ते हैं लोग अंडर कंस्ट्रक्शन का फेज में, I think there will be some sort of interest holiday schemes which will come up. It's time the consumers are going to demand for it. If you're in late 30s and still paying home loan EMIs and waiting to start savings once the loan is over, this is an alarm. You do not have 20 years of service left at 40. Your 35-45 age should have enough savings to last 3 decades along with the major expenses like kids education. इसको सुन के तो पैनिक अटैक ही लग रहा है. एग्जैक्टली, थोड़ा फोमो पैदा हो रहा है इसको सुन के और पैनिक अटैक आ रहा है. ऐसा नहीं है, पता है, हर कोई बहुत हाई इनकम ब्रैकेट में नहीं आता है, और लाइफ में हर कोई अपनी इन्वेस्टिंग को लेके, चीज़ों को लेके मिस्टेक करता है. इट्स ओके, बट येस, वन शुड स्टार्ट थिंकिंग कि भाई अब क्या करना है, अभी करंट पोजीशन से मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ. थोड़ा बहुत अपने गोल्स को लेके, अपनी इनकम को लेके, टैक्सेस को लेके अवेयर होइए और एक जर्नी शुरू कीजिए. अभी आपका समय है, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है. आप लेट 30s में हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. आपकी फाइनेंशियल लाइफ अभी काफ़ी बची है, बट येस, यहाँ से भी अगर आप चलते हैं, शुरू करते हैं, you're good to go. Chalo, reassuring. The best passive income is dividends from quality companies taking care of your expenses. Also, these companies make increasing dividends at a rate higher than inflation. Yes and no. If you have started early and आप growth stocks में हैं, तो आपका डिविडेंड बढ़ता ही जाएगा. 5-6 साल में मैक्सिमम कंपनीज के डिविडेंड 6-7% के ऊपर पहुंच जाएंगे. द फ्लिप साइड इज डिविडेंड इज नाउ टैक्स्ड एट योर टैक्सेबल रेट. कुछ साल पहले डिविडेंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी दे देती थी अपने आप ही, आपको नहीं देना होता था. अभी वो सब खत्म हो गया है. डिविडेंड इज एडेड टू योर इनकम, तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा. आपको टिपिकली इफ यू आर अ गुड अर्नर, भले वो पैसे वो एक्टिव हो, 33% टैक्स देना है. तो डिविडेंड इज टैक्स एट द हाईएस्ट रेट. तो कहीं ना कहीं पे टैक्स का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. बट येस, डिविडेंड विल इंक्रीज. इसीलिए आप देखेंगे वॉरेन बफेट का एग्जांपल, कोका कोला वो कभी नहीं बेचते. हिज डिविडेंड इनकम प्रॉब्ली इज 25-30% डिविडेंड यील्ड फ्रॉम कोका कोला. ज़्यादा हो सकती है. My thumb rule is that EPS has to be increasing, trend has to be increasing. Business model cannot be seasonal. अगर business model seasonal होगा कि कभी कम कभी ज़्यादा, तो आपको dividend assured नहीं मिलेगा. My friend bought a house in 2020 in Mumbai for over 1.5 crores. Currently on rent for about 35,000. Excluding Bangalore, rental yield in India is pretty low. सही है. रेंटल यील्ड के लिए आप हाउसिंग में इन्वेस्ट करना ही नहीं. रेंटल यील्ड चाहिए, पैसे के लिए आप हाउसिंग में इन्वेस्ट करना है तो आप कमर्शियल एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको 7-8% रेंटल यील्ड मिलेगा. हाउसिंग में 2-3% ही है. हाउसिंग एज एन एसेट क्लास रेंटल यील्डिंग के लिए बिग नो. In India, finance isn't personal. It's a family WhatsApp group project. Your dad wants safety, your mom wants clarity, your brother wants returns, you want growth, your CA wants your soul. And all 5 must agree before you invest 5,000 rupees in anything that isn't LIC.
And our finance minister wants her share of capital gain tax also. है ना? Exactly. So yeah, it's true actually. It's not personal, at least in your initial 10 years. And you got more people, yeah. लगता है tweet का जगह कम था. Your character limit आ neighborhood गई. uncle wants you to invest in a LIC policy. वो भी है. So all these things have to come in. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.